یہ والے اس قسم کے میرے اوپر الزامات ہیں اور میں نے آج تک اپنے رائٹ کے لیے ان کے سامنے آواز نہیں اٹھائی. اچھا صبا ایک منٹ، ڈاکٹر موئز آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں چاہوں گا کہ یہ پوری تفصیل مجھے آپ ای میل کر دیں، اور مجھے اس میں ایک چند سوال ہیں. ایک میں سے ایک سوال یہ کہ آپ کے خیال میں آپ کے والدین کا رویہ آپ کی طرف ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں پتا تو آپ کم سے کم امیجن کر سکتی ہے، پری سپوز کر سکتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر موئز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میری جو چھوٹی بہن ہے اس کو جب میں اپنی دیورانی بنا کر اس گھر میں لائی ہوں اپنے ساتھ، وہاں سے چیزیں جو ہے نا وہ غلط. میں جو تھی میں اپنے ساس سسر کی چوائس تھی اور وہ اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ زبردستی کی ہوئی ہے میرے ساتھ. اچھا میں آپ کو ویسے تو آپ ای میل کریں، مگر ابھی فی الحال ایک صرف بات آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں سامنے والا شخص کوئی بھی ہو، والدین ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، باس ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیا کرتا ہے یہ اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کا احترام 10 سالوں تک کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں تو برائے کرم کرتی رہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. کوئی انسان کا صبر، کوئی انسان کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اس کا اجر کہیں نہ کہیں ملے گا آپ کو، اپنے گھر میں ملے گا، اولاد میں ملے گا، اپنی زندگی میں ملے گا، آخرت میں ملے گا ضرور. میں سے تفصیلی مجھے ای میل کریں، میں اس پہ کچھ آپ سے بات کروں گا اور کچھ بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. صبا ای میل ایڈریس ہے 123boss@gmail.com. پروگرام کے اینڈ میں بھی یہ شو ہوگا. پلیز ڈاکٹر موئز کو ای میل کریں، وہ آپ کو خود پرسنل رسپونڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، اینڈ تھینک یو سو مچ آپ نے اپنی پرسنل بات ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے، وچ از ریئلی اپریشیٹیبل کہ آپ ہم پہ اتنا بھروسہ کرتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اچھا ویسے یہ ایک بات ہے کہ چلیے ان کا تو اٹس مے بی اے ریئر کیس، مے بی ناٹ اے ریئر کیس، لیکن آپ چاہے کرنا چاہ رہے ہوں کسی ریلیشن شپ میں کچھ دینا چاہ رہے ہوں اپنا، لیکن آپ سامنے والے کے رسپانس سے اتنا ڈرتے ہو یا آپ کو پتا ہو کہ وہ نہیں کرے گا اتنا اس کو اپریشیٹ، دین یو ڈونٹ ڈو دیٹ. آئیدر یو ڈونٹ ڈو دیٹ اور یو ڈو دا ادر وے. سو واٹ شوڈ ون پرسن ڈو؟ انسان کو اگر ہمیں یاد ہے کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ہیومن موٹیویشن پہ، اگر تمہیں یاد ہو نا، ہمارا جو سب سے بڑا موٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایکٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں ریوارڈ ہوتی ہے ہمارے لیے یا فیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی ایشو ہے آپ کا کہ آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں، چاہے وہ عزت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اس کو وقت دے رہے ہوں، کچھ بھی دے رہے ہو، اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. سامنے والا شخص جب نہیں دیتا تو آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ 2 موٹیویشنز بہت بڑی ہیں، ایک ڈیوٹی ہے اور ایک سیلف سیکریفائز ہے. یا تو آپ کوئی کام کریں تو اپنا فرض سمجھ کے کریں، ڈیوٹی ہے، اور ریوارڈ کو ایکسپیکٹ نہ کریں. یا اس سے بڑی چیز یہ ہے ڈو اٹ بیکاز اٹ از رائٹ، ایک صحیح چیز ہے اس کو کرنا ہے تو یہ سمجھ کے کریں. اب وہ کسی بھی رشتے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کون سر، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالرزاق محمد کراچی سے. جی کیسے عبدالرزاق صاحب؟ الحمدللہ. جی سب سے پہلے آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے. آپ کی مبارک. تھینک یو. آپ بتائیے. میں نہیں کہوں گا لیکن براؤں عمر میں دین کہوں گا کیونکہ میرے استاد نے بیٹی ہونے ہیں. جی سر بتائیے، ہیومن رائٹس پہ، ہیومینٹی پہ کچھ بتائیے. السلام کی. جی ڈاکٹر صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، پہچانا مجھے؟ جی میں پہچان گیا، آپ کی آواز سے پہچان گیا. کیسے ہیں آپ؟ تھینکس سر. پیروں میں ٹانگوں میں فرق ہے؟ جی بہت فرق ہے، کافی فرق ہے. چلے اللہ کا شکر ہے. دیکھیں میں نہ صرف آواز پہچان گیا، آواز کے ساتھ ایشو کیا تھا وہ بھی پہچان گیا. بڑی شکریہ، بہت شکریہ. بڑے سالوں سے آپ کو نہیں دیکھا میں نے. ہاں 2002 میں آخری ملاقات ہوئی تھی. بس جہاں رہے خوش رہے اللہ تعالیٰ آپ کو. ہاں بس گھر میں ہوں، وہ بوکل سے چلتا ہوں. جی جی. اور کبھی باہر نکلتا ہوں تو ویل چیئر پہ جاتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. ویسے کافی فرق ہے پہلے سے. چلے اللہ کا چلے. شکر ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. آپ نے ہمیں کال کی اور اگین 2002 میں آخری ملاقات ہوئی تھی. یو اسٹل ریمبر ہم، سو دیٹس Not only him, but a problem here. Yeah, the problem with the voice. That's amazing. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے؟ محمد اکرم گجرات. کیسے ہیں سر آپ؟ عروج صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر موئی صاحب. وعلیکم السلام اکرم صاحب. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج آپ کا انداز بیاں مختلف تھا تو عروج جو ہے وہ پہچان نہیں پائی آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں ایسا بھی ہو جاتا ہے زندگی میں کبھی کبھی. جی سر. اور جہاں تک آج کے ٹاپک کا تعلق ہے کہ انسانی حقوق، قانون قدرت ہو یا قانون حق، جب تک ہم ان کی پاسداری نہیں کریں گے
इंसानी हकूक के तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखेंगे, हम कभी भी इन दर्जात तक नहीं पहुंच सकेंगे जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। सही बात, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं अपने हकूक तो माफ कर सकता हूँ, सही बात, मगर बंदों के हकूक माफ नहीं कर सकता जब तक बंदा खुद माफ ना करे। ना करे, सही कहा। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की अहमियत को किस कदर उजागर किया है। बिल्कुल सही। फिल वक्त जो हालात जा रहे हैं इसमें इंसानियत खिदमत दूर की बात, इसकी तरफ मोहब्बत से देखना, खुलूस से पेश आना, इज्जत और एहतराम का मर्तबा भी नहीं देते। इस मौके पर रमजान शिपा साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अंसार बरनी साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर मोईद साहब जैसे बेशुमार शख्सियत ऐसी हैं जो इंसानियत की खिदमत में सरगर्दा हैं। मैं इनके जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और मोहब्बत से शर्सात दिलों की कदर करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें खुश खुरम शादो आबाद रखे और इसी तरह से इंसानियत की खिदमत करते रहें और हमें भी तौफीक दे कि हम भी इंसानियत की कुछ ना कुछ तो खिदमत करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी खूबसूरत तरीके से एक बात को एक्सप्लेन करने का। आपका अंदाजे में बहुत ही प्यार है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज बिकॉज दिस टॉपिक इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है ह्यूमन राइट्स पे, ह्यूमैनिटी पे बात हो रही है। इंसानियत आखिर है क्या? इंसानियत हम सब हैं तो इंसान, तो हमारी इंसानियत कहाँ चली गई? इंसानियत इंसानों में पाई जाती, हम सब इंसान हैं जिनमें इंसानियत नहीं है, तो ये आखिर चक्कर क्या? और इंसान को इंसानियत के बारे में बताना पड़ रहा है, ये भी एक अजीब सी बात है कि एक इंसान जो हम खुद इंसान है, हमें इंसानियत के बारे में बताना पड़ रहा है। एक दफा कहा था ना कि हम पैदा इंसान होते हैं, फिर हमारी तमाम एजुकेशन, तालीम और माहौल हमें बना देता है आदमी। अब आदमी बनने के बाद फिर कहीं से कोई एक पुकारता है, आपको सदा देता है, आवाज देता है, दस्तक देता है कि इंसान बनो, तो फिर अक्सरियत तो इंसान बनने को तैयार नहीं होती। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनमें बेदारी का अमल शुरू होता है और वो फिर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम इस शो के बाद जो शो कर रहे हैं, हमने स्पेशली आपके लिए जो टॉपिक रखा है, आप लोग जाग गए हुए तो हैं, अब बेदार होते ही नहीं होते, ये तो आपके ऊपर है। जी आप बताइए सर, आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत खुशी हुई कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एक फॉर्म पे बात हो रही है। मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कुछ कि इंसानी हुकूक की अहमियत क्या है। इंसानी हुकूक की जो अहमियत है, अगर इंसान को एहसास हो, जिम्मेदारी हो, तो इंसानियत और हैवानियत का फ़र्क ही यहाँ से शुरू होता है। जानवरों को एक दूसरे की तकालीफ को एहसास नहीं होता, एक बीमार है तो दूसरे को एहसास नहीं होता, जबकि इंसान अगर वो वाकई में इंसान है तो दूसरे के हुकूक का बहुत ख्याल रखता है। ठीक है। अच्छा वैसे जो जहाँ तक इनकी बात है, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी क्वेश्चन ये है कि मतलब वैसे तो घर से फिर सोसाइटी, फिर कंट्री, फिर वर्ल्ड लेवल पे इश्यूज चलते हैं इंसानी हुकूक के बारे में, लेकिन मीडिया जो है वो थोड़ा सा जो है ना जानिबदाराना होता है, हमारा मीडिया स्पेशली। जैसे कि मैं कुछ मिसाल दूंगा बर्मा के हवाले से, अभी ये भाई ने भी बात की, बर्मा के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल खामोश है, एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है पूरी दुनिया में, और मीडिया इतना खामोश नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। मीडिया वैसे खामोश मुझे तो नहीं पता कि मैं इतना फॉलो नहीं करी, सोशल मीडिया पे काफी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। अच्छा मुझे बताएं, जानवर जो हैं, जानवरों की जो बात हो रही थी, मैंने जो नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा, अगर एक जानवर को तकलीफ हो तो दूसरा उधर होता है, मौजूद होता है, यू नो इट इज देयर, यू नो समहाउ उसको भी फील होता है। इज इट ट्रू? 100% ट्रू। फर्क इन्होंने जो बात की वो इनकी बात अलग है, बिल्कुल सही है, मगर थोड़ा सा फर्क ये है कि जानवर कबीले में रहता है, फिरके में बटा होता है। ठीक है, शेर का जो कबीला होगा वो अपनी कबीले में एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखेगा। ठीक है, ऐसे हायानास बड़े खतरनाक जानवर होते हैं, और ये तो जब शिकार करते हैं तो जानवर जब जिंदा होता है उस वक्त उसको खाना शुरू करते हैं। मैड डॉग्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं, खूंखार होते हैं, अपने कबीले में एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, मगर बाहर के कबीले से कोई आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फर्क है इंसान में और जानवर में। आप तो समझी? अगर जो लोग इंसान, जो हम इंसान है, फिरकों में बटे हुए हैं, तो हम भी फिर जहाँ से कि अगर हम इंसान फिरकों में और रंगों के उसमें कबीलों में बटे हुए हैं, बायस हुए हैं, तो हम भी किसी जानवर से कम नहीं है। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम उरूस, मेरी बहन कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई आया साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई यकीनन मेरा दिल चाहता है, कल डॉक्टर साहब की जो एंड प्रोग्राम का एंड था उसको देख के तो यकीनन इतनी खुशी हुई कि जो बात उन्होंने कहीं ना, अगर लोग समझ में तो उनको सब ह्यूमन राइट समझ में आ जाए। मैं तो एक शेर पढ़ूंगा उरूस के, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो डॉक्टर साहब से मेरा सिर्फ यही सवाल है कि हम लोग इंसान कब बनेंगे? आप यकीन कीजिए अभी रास्ते में गाड़ी में मैं उरूस से कह रहा था यार साहब बड़े याद आ रहे। यार साहब की भी कॉल भी आई थी, उसामा की बर्थडे भी थी। आई होप उसामा ने अपनी बर्थडे बड़ी एंजॉय की होगी, उसका गिफ्ट मुझे ड्यू है, मुझे याद है। अच्छा जी, यानी कि जो हम सारे लोग इस वक्त इंसान जो अपने आप को हर फिरका अपने आप को तो सबसे अजीम तरीन नहीं समझता है कि हम सबसे ऊपर हैं, और हम इंसान जो है अपने आप को फिरकों में बांटे हुए हैं, तो हम किसी जानवर से कम नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ केयर करते हैं अपने फिरके वालों की, बाकियों को भी जस्ट निगलेक्ट दें। अपने कबीले अवार्ड भी उन्हीं को देंगे, अवार्ड भी उन्हीं को देंगे। तो ये दैट इज यू नो यू अब ये समझने की बात है, बात चीजें हम बहुत डिटेल में नहीं बताते, हम चाहते हैं कि अक्लमंद को इशारा काफी होता है। ठीक है, इशारा दे दिया आपको कि फिर हम ये पता है रंग के ऊपर भी लोग बहुत वो करते हैं। दुनिया में रंग पे भी बड़ा तासुब है। अमेरिका के अंदर एक तंजीम है क्लू क्लैक्स कैन, ये इनकी तकरीबात होती है, जमा होते हैं, सारे गोरे होते हैं और ये कालों से नफरत करते हैं, कालों के इन्फीरियर समझते हैं। हिटलर के ज़माने में जर्मन जो है वो बड़ी खूबसूरत कौम है और इंजीनियरिंग में कमाल है, यानी अल्लाह ने उनको माइंड को इंजीनियरिंग पैदा किया। अमेजिंग। उनका ख्याल था कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर और कोड है जर्मन्स का, बाकी दुनिया के तमाम इंसान इंफीरियर है, जर्मन सबसे ज्यादा सुपीरियर। ठीक है। ये आज भी दुनिया के इस मौजूदा तहजीब वाले दौर में, तालीम याफ्ता दौर में आज भी ये तासुब रंग और नस्ल का पाया जाता है। जब तासुब होगा तो इंसानी हुकूक पामाल होंगे। अच्छा, क्योंकि आपका रब पैदा करने वाले ने तमाम इंसान को बराबर पैदा किया है। वो कहता है मेरे से करीब वो है जो तकवा में सबसे ज्यादा हो। अब तकवा का ताल्लुक रब जानता है कि किसके दिल में तकवा कितना ज्यादा है। अमल इंसान दिखाने के लिए कर सकता है, मगर जो इंसान की नीयत होती है वो रब जानता है उसको। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? टीवी का वॉल्यूम प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। हेलो हेलो, उरूज, मैं रजिया बात कर रही हूँ। जी रजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए। बस सबसे पहले तो आप प्लीज मेरा नाम लिख लीजिए रेकी के लिए। लिख लिया है मैंने आपके बोलने से पहले। ठीक है, आज मैं अपना पर्सनल आपसे एक शेयर करना चाह रही हूँ। जी प्लीज। जो हम सब इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, तो मेरी शादी को 28 साल हो गए। ठीक है, मेरा एक बेटा है डाउन सिंड्रोम 24 साल का। ठीक है, और बाकी वैसे मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह से, 4 बेटे और एक बेटी। एक बेटा जो है मैंने अपनी नंद को गोद दिया, उनकी औलाद नहीं थी, और एक बेटा मेरा डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, अब मुझे ऐसे कुछ दिनों से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने मतलब जो भी कुछ मेरे बस में था मैं सबके लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ, लेकिन रिटर्न में जैसे ठीक है अल्लाह देने वाला है जज़ा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंसान ये चाहता है कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो थोड़ा सा आपको कुछ नहीं तो रिस्पेक्ट ही मिल जाए इन रिटर्न। तो वो कुछ दिनों से मुझे बहुत ऐसे फील हो रहा है कि जैसे बस एक मैं जिंदा लाश की तरह हूँ, सबके लिए चल रही हूँ, सबके काम कर रही हूँ। ठीक है, जो अल्लाह ने मेरे पे डाली है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन अब मुझे ऐसे हो रहा है कि क्या मेरे लिए भी मेरा कोई हक है, या कुछ मेरा मतलब मेरी कोई जात है, या मेरा कुछ है जो मैं अपने लिए कुछ कर लूँ थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा देर के लिए, कोई भी चीज, तो क्या ये मेरा हक है या नहीं है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे इंसानियत की तो हम बात कर रहे हैं, एक इंसान अपनी ड्यूटीज इन लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल इनका दे रहा है, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने जो हद में है वो सब कुछ कर रहा है। क्या उसके लिए किसी और की ड्यूटी अपनाने के लिए या निभाने के लिए अपना सैक्रिफाइस करना चाहिए, कि अपने इंसान के अपने खुद के कोई राइट्स नहीं होते अपनी तरफ? क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो करती हैं, इस तरह मर्द भी होते हैं, बहुत कुछ करते हैं दूसरे के लिए, अपनी जिंदगी एक तरह से कुर्बान कर देते हैं। आपके हक का पता सामने वाले शख्स को होना चाहिए। आपको तो पता है, मगर हुकूक तो उसने पूरे करने हैं ना आपके। आप उसके हुकूक पूरे कर रहे हैं, वो आपका नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर समझने की बात यही है कि जब सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट आता है, असल में यहाँ पे फिर बड़ा मसला है समझाना। हम जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज जबरदस्ती है, बर्दाश्त है, एक तरह से नो वे आउट, तो क्या करूं?
सेक्रीफाइस जब आप करते हैं तो सेक्रीफाइस में इसार